Good afternoon, dear students. Today we will discuss some different type of the problem for drawing the shear force and bending moment diagram. So in the last classes we have discussed in the classroom the shear force and bending moment diagram. How can we draw if the load is acting on vertically on the beam, or if, and we have considered two type of the beam. One is the overhanging and the simply supported beam. So let's move ahead. We discuss some different type of the loading if is there. So how can we draw the shear force and bending moment diagram? So suppose we have the loading in such a way what this is given, and also one thing is there, the loading is a triangular load, and here at this type of the loading is there is some offset, there is some offset in the beam. Loading is there, then how to convert this loading to their conventional type of beam? So triangular loading, you all know that triangular loading, or it is also known as a uniformly varying load. So how to deal with the triangular load? So we will discuss furthermore. So come to the first, convert these load into the conventional type. So this type of the loading, if there is any offset is there, suppose, and that time this load produce one movement and one vertical load. So it's give two things, one load and one movement in the beam. Let's see that. So suppose this is a structure of the beam. So this is 0.5 meter distance is given of the offset, 0.5. So multiply the 0.5 into 40. 40, this what vertical load is acting over there. This was 40 kilonewton. So 0.5 into 40. So it's become a 40 kilonewton meter, 40 kilonewton meter moment of the, or where it is the point C, because this is the point C, the line of action of this force is distance at the 0.5 from the C. So this, and the what will be the direction? Its direction must be a clockwise, because if you are taking the point C as a reference point, so with respect reference to of this, it is trying to be moved clockwise. So this movement is in clockwise, this 20 kilonewton meter. Then this 40 load is also is there. 40, this 40, this will be also acting. So this is as it is what amount magnitude of the force is there, then it directly come to the point C. This 0.7 is no role in this because vertical distance is doesn't affected to that बीम. सो ये डायरेक्टली ऐसे आ जाएगा. सो आपका ये जो ऑफसेट लोडिंग थी, नाउ इट्स कन्वर्टेड इन द वन लोड एंड वन मोमेंट ऑन दैट बीम. सो जब भी अगर आपका, देखो मैं पहले बता रहा हूँ, ये ऐसा क्वेश्चन आरजीबीवी में नहीं आ रहा, बट कम्पिटिटिव एग्जाम में आता है. ऐसी लोडिंग कर दी और आपको डायग्राम में पूछ लिया कि इसकी वो पॉइंट सी पर कौन कौन से कैसे कैसे लोड लगेंगे, किस टाइप के लोड लगेंगे. तो ये आ सकता है इफ़ यू आर प्लानिंग टू गिव एनी कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन. उस तरह के लिए ये इंपॉर्टेंट हो गया. आरजीबीवी में नहीं देगा इतना कठिन, पर मेरा फर्ज है तुमको बताना, मैं बता दे रहा हूँ इसको. So now it is convert like this, and already this uniformly varying load is given. So now this beam is ready to solve to get the shear force and bending moment at the salient point of the beam, and then draw the shear force and bending moment. Now the dear procedure is same. अब एक पॉइंट से आप चाहे तो लिख लीजिए, जब भी किसी भी बीम पे, चाहे वो सिंपली सपोर्टेड हो, चाहे ओवरहैंग हो, चाहे कि कौन सी कैंटिलीवर बीम हो, अगर उसमें मूवमेंट अलग से लग रहा है, तो इफेक्ट ऑफ द मूवमेंट ओनली इट ऑब्जर्व इन
bending moment diagram, or when you are going to find out the moment, when you are making the equation or the constituting the equation of the moment only. So moment का effect in दो जगह पे है. One, it is affecting to the bending moment diagram, and another is the equation of the moment. Therefore में उसका कोई रोल नहीं है. You no need to be minus or plus. You just leave it. ठीक है. So ये चीज आप याद रख लीजिए. तो अपन चलते हैं, थोड़ा आगे मूव करते हैं. तो आप क्या करोगे? सबसे पहला कंडीशन होता है जब भी आपको ओवरहैंग बीम हो या सिंपली सपोर्टेड बीम हो, तो व्हाट इज द आवर फर्स्ट स्टेप? फर्स्ट वी हैव वी कैलकुलेट द रिएक्शन एट द सपोर्ट. वो आपको आता है निकालना. बस मैं ज़्यादा नहीं, ये मैं यहाँ पर दिमाग लग, बस सिर्फ ट्रायंगुलर में आके आपको ज़्यादा बताता क्योंकि इधर का सब आपको पता है. सो आइए, सो वी आर अज्यूमिंग कि moment at A means this is equal to 0. So this RD and RD perpendicular distance from the A. How much? It's a 4. RD into 4, and this tried to be this 4 tried to be move this beam anti-clockwise. I am taking the movement, that's why I am saying the movement anti-clockwise or clockwise. So because it's trying to move in anti-clockwise direction, that's why it's come minus sign. That's the what. Then next load is this 20. So 20 into this distance is 2. 20 into 2, and half of that 1. So half of that is 1, and distance from A will be 1. So 20 into 2 into 1. Then next load is a 40. 40, the distance of this 40 is 3, 2 and 1. 40, okay? And here, this 20 will also come on the this equation, because this is the equation of the movement. So this is itself a movement, so it directly come depend on the direction. So because it's moving on the clockwise, so directly come 20 plus here. Then my dear students, come to this triangular loading. ये आप जरूर नोट कर लीजिए और समझ लीजिए. इन केस ऑफ द ट्राइंगुलर लोडिंग, फर्स्ट ट्राइंगुलर लोडिंग को अगर आपको फोर्स में कन्वर्ट करना है, पॉइंट लोड में ऐसा कन्वर्ट करना है, तो उस यू जस्ट पुट द फॉर्मूला ऑफ अ ट्राइंगल. ट्राइंगल का फॉर्मूला होता है 1/2 v into h, बीच into हाइट. चलिए, सो व्हाट इज द 1/2? इसकी this side is given here 30 kilo Newton per meter. So this 30 and this is a 2. So here 1/2, height को मान लो 2 है, अपन यहाँ से बात करेंगे. This is a 2 और this is a base 30. So 1/2 2 into 30. Here sorry. So 1/2 2 into 30. Great. Then अब आपको, क्योंकि you are finding out the bending moment, sorry, moment, not bending moment. So load you have right now, this 1/2 2 into 30. This is called the load. Simple, you applied the formula of a triangle, 1/2 b into h. Now the distance of this triangular load from this point A कितना होगा? यहाँ तक तो तुम आ जाओ. 2 1 1 4, ये आ गया. देखो 2 1 1 4, यहाँ तक पहुँच गए तुम. लेकिन वो तो कहीं यहाँ है. तो लेकिन किसी भी ट्रायंगुलर का अगर आप उसको लोड में कन्वर्ट करोगे तो इट्स स्टार्ट एक्टिंग ओवर द सीजी ऑफ दिस ट्रायंगल. एंड ट्रायंगल का जो सीजी होता है वो बेस से इस साइड से जब आप मूव कर रहे हो, यहाँ से देखो जरा, यहाँ से और यहाँ, ये जो डिस्टेंस है वो इस, अगर ये डिस्टेंस h है टोटल, तो ये हो जाएगा h/3. वही किया तो टोटल ये 2 है, तो ये इट्स बिकम 2/3.
h by 3. तो this distance from A to D is 4 plus the height of triangle here. अगर आप ऐसे इस साइड से देखते हो अपने राइट साइड से, तो हाइट मतलब ये DE वाला पार्ट, उसका 1/3, तो 2/3. आप जस्ट इक्वेट कर दो जीरो के. सो आर डी इज इक्वल टू, ये देख लीजिए, आर डी इज इक्वल टू 80 किलो न्यूटन. इसको सॉल्व करने के बाद देन अब सिंपली आपको आर ए निकालना है. तो जितने भी वर्टिकली लोड ऐड कर रहे हैं उस बीम पे, जस्ट उसको आप प्लस माइनस साइन के साथ जोड़ दीजिए. जो भी लोड ऊपर की तरफ जा रहे हैं वो प्लस, नीचे की तरफ आ रहे हैं उसको माइनस. तो आर ए ऊपर जा रहा है, आर ए, और प्लस आर डी भी ऊपर जा रहा है, तो प्लस 80. आर डी की वैल्यू 80. देन आप 20 इंटू 2 डिस्टेंस पे एक्ट कर रहा है, तो 20 इंटू 2 माइनस ऑफ दिस 40 नीचे की तरफ पे एक्ट कर रहा है. देन फिर दिस ट्राइंगुलर लोडिंग 1/2 2 इंटू 30. We are not consider this moment, because this is the equation of force only, not a moment equation. So you have calculated the value of RA and RD which is required. Hope you are understood. Definitely this little bit you have to remember small thing and while the solving such kind of numerical. Otherwise you will maybe you will face the problem. These kind of numerical are really important as a competitive exam point of view. If you want to be prepared for the GATE examination or some IES, so this type of the problem it's important. There is a concept. You have to remember that concept behind the scene. So let's. Now the method is same. Now is nothing is different. What we have solved earlier, that is the same concept. Just what we are doing is in the previous classes we have marked some the points like before the loading 0 0, after the loading next value, then where the load is end and where load is start, load is the end, load is start, load end, and at the end of the beam. So ये लाइन आप जो पिंक कलर से है जो आपने मार्क किया, यू नो दैट यहाँ पर ये क्योंकि ये लोड है तो इसके एक पहले इसके एक बाद यहाँ पर ये खत्म हो रहा है. अगर यहाँ पर एक और लोड आ जाता अलग से तब आता ना, 2 यहाँ आता, फिर 3 और आता, लेकिन यहाँ पर दूसरा लोड नहीं है तो एक में खत्म हो गया. देखो अब ये आ गया एक पॉइंट लोड, एक पहले एक बाद में. यहाँ ये 2 लाइन इसलिए क्योंकि ये नीचे से लग रहा है, इसकी वजह से ये अकेला नहीं होता तो ये 2 लाइन नहीं आती. ये आप देखते रहना, जहाँ पर भी ये वाला पॉइंट लोड आएगा ऐसा मिक्स होगा तो वहाँ पर 2 लाइन को करनी पड़ेगी. देन एट द लास्ट ऑफ दिस. सो अब यू हैव आर ए एंड आर डी. अब सिंपल आपको शेयर फोर्स निकालना है. अब मेरे को पता है कि आपको सब पता है, इसके आगे आप देखो वही चीज़ है. F0 0 पे शेयर फोर्स 0 है क्योंकि कोई लोड लग नहीं रहा, वो बीम के लगभग बाहर ही है. देन आप 1 1 में आएंगे तो जो वैल्यू आर ए की होगी वो एज इट इज हो जाएगी. साइन कन्वेंशन अब आपको याद हो चुका होगा, मेरे को रिमाइंड कराने की जरूरत नहीं पड़ना चाहिए. ये है आर ए. अगर इसकी बात करूं तो आर ए यहाँ से लग रहा है नीचे से ऊपर की तरफ और ये होता है पॉजिटिव, और इधर से ऊपर से नीचे की तरफ अगर आते तो ये होता है निगेटिव, और इसका वाइस वर्सा इधर चलता है, ये वाला पॉजिटिव और ये वाला निगेटिव. अब देख लीजिए सेक्शन 1 के लेफ्ट साइड, तो दिस सेक्शन एक्सेस के लेफ्ट साइड नीचे से ऊपर प्लस, दिस इज प्लस 30. अब 1 1 के बाद 2 2 पे आइए. 2 2 पे आए तो पहले का जो 30 है वो तो हम लेंगे एज इट इज विद द साइन. देन अब हम जो लोड लग रहा है उस लोड को कंसीडर कर लेंगे. कितना लग रहा है 20 डिस्टेंस कितनी 2, तो 20 इंटू 2 हो गया. अब साइन क्या होगा, क्योंकि अब ये साइन कन्वेंशन में देख लीजिए ये है सेक्शन 2 2, तो सेक्शन यहाँ आ जाइए तो ऊपर से लगने वाला लोड निगेटिव हो गया. ठीक है, तो -10 आ गया यहाँ पर. अब नेक्स्ट -10 फिर इधर जाएगा
3 पे इसके बीच में कोई लोड ही नहीं है तो -10 हो जाएगा यार 3 पे। फिर 4 में जब जाएंगे तो प्रीवियस एज इट इज विद द साइन -10 एंड दिस 40 किलो न्यूटन विच इज एक्टिंग दिस पॉइंट दिस ओवर हियर, तो इट्स विल आल्सो, तो जैसे ही आया -40 सो इट्स बिकम -50 एंड 5 पे आइए सेम आ जाएगा, उसके बीच में कोई लोड ही नहीं है। देन डियर स्टूडेंट व्हेन कम टू द दिस पॉइंट 66 आइए तो -50 तो आया जाएगा, लेकिन ये लग रहा है इधर से 80 किलो न्यूटन और वो सेक्शन 66 के नीचे से ऊपर की तरफ, मतलब ये वाली कंडीशन लग रही है। सो इट्स प्लस साइन प्लस 80 इट्स बिकम 30 किलो न्यूटन। दैट 77 में क्या है 30, you consider this 30 first, then this triangular loading you have to be consider. What is the कितना है triangular loading 1/2 t into 30 और अब वो आ गया कितना 0, तो ये बिल्कुल चेक हो गया कि भैया हाँ तुम्हारा जो भी तुमने लगाया मेथड बिल्कुल सही है, 100% सत्य है। देन इसका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम वो तो आपको आता ही है निकालना, ऊपर जाए पॉजिटिव नीचे जाए निगेटिव। तो अभी ये शेयर फोर्स की वैल्यू जो मिली उसको हम सिंपली रखेंगे और ड्रॉ करेंगे। यहाँ पर था 30 किलो न्यूटन, पॉजिटिव है ऊपर की तरफ चला जाएगा, इस पॉइंट पे -10 था तो ये -10 आ गया, इस लाइन को मिला दीजिए इंक्लाइन। आप यहाँ पर भी एक लाइन डॉट डॉट वाली खींच सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, इसके सीधे पे ऐसे, ठीक है। सो ये हो गया -10, फिर यहाँ 2 से लेके 3 तक -10 ही था, ये देखो यहाँ आ गया। फिर जैसे ये 40 लगा -10 से वो तो -50 हो गया था तो -50, फिर यहाँ पहुंचे 50 लेके 5 तक, ये देखो यहाँ तक आ गया 50 तक। फिर 6 में जब गए तो वो टोटल पॉजिटिव 30 हो गया, तो ये यूं आ गए हम यहाँ, और इस पॉइंट पे शेयर फोर्स है 0, इसको मिलाएंगे हम पैराबोला, क्योंकि जहाँ पर आपका ट्रायंगुलर लोडिंग होती है उसका शेयर फोर्स पैराबोला होता है और उसका बेंडिंग मोमेंट क्यूबिक होता है, ठीक है। तो ये हो गया अबाउट दिस, इस वाली बीम के लिए, ठीक है। अब हम ऐसे हो अब कैलकुलेशन करेंगे बेंडिंग मोमेंट का, तो बेंडिंग मोमेंट निकालना आई थिंक आपको आ जाएगा, कोई बहुत बड़ी सी बात नहीं है। सेम दोनों कॉर्नर पे 0 बी पे आए, जैसे बी पे आए तो कौन सा लोड लग रहा है बी से ए की डिस्टेंस कितनी है, बी से ए की जो डिस्टेंस है वो है 2, तो बी में क्या हो जाएगा 30, ये 30 आर इज 30, यहाँ आ जाइए आर, अभी एक्स पे अभी नहीं निकालते, अभी आप बी पे निकालिए 30 इंटू 20 फिर माइनस दिस, तो दिस इज हाउ मच 20 इंटू 2 इंटू इसका आधा 20 और 20 इंटू हाफ 1, तो 20 किलो न्यूटन मीटर। चलिए देन उसके बाद जिस पॉइंट पे आपने अल्फाबेट रखा ए बी सी डी ई यहाँ पर निकालना है। देन उसके बाद इस सी पॉइंट पे चलते हैं, तो सी पॉइंट पे जब आइए तो सी पॉइंट पे 30 और इससे डिस्टेंस कितनी है 3, तो 30 इंटू 3, दिस लोड ऊपर से ये ऊपर की तरफ लेके जाएगा आ रहे तो पॉजिटिव हो गया, 20 वाला नीचे की तरफ लेके आएगा तो 20 इंटू 2, अब 20 इंटू 2 का इसका आधा 2 का 1 और ये 1, तो 1 1 2, तो दिस इज 20 इंटू 2 इंटू 2, इसको सेक्शन बिफोर द कपल, आपने कपल इस बार कंसीडर अभी नहीं किया है। दूसरे बात फिर एमसी पे 2 वैल्यू होंगी, क्योंकि इस कपल ये भी लगा हुआ है टॉर्क, तो वो हो जाएगा पहले का 10 आएगा, देन ये देखिए ये बीम को देखो जरा, ये जो ऐड कर रहा है इस सेक्शन को आप लेके जाइए यहाँ, इस सेक्शन को क्लॉकवाइज मूव करेगा इस तरफ से, तो ये बीम को किस कहाँ पर निकालना है इस पॉइंट पे, तो इस पॉइंट पे ये सेक्शन को इट्स ट्राई टू बी मूव अपवर्ड डायरेक्शन, ठीक है। सो यहाँ पर ये आ जाएगा 20, तो 2 वैल्यू आ जाएंगी यहाँ पर, ठीक है। डी पे आएंगे, फिर जैसे आपने निकाला डी पे भी वही कंसीडर, अब डी पे निकालने के लिए भी आपके पास 2 तरीके से हैं, आप या तो इधर से मूव कर लो या तो ये पूरे लोड कंसीडर कर लो।
ये सुविधा सिर्फ किसमें है? ओनली इन द सिंपली सपोर्टेड बीम और ओवरहैंगिंग बीम में। तो आप यहाँ से मूव कर लो। ये देखो इन्होंने कहाँ से किया, यहाँ से हमने कर लिया। So this 1/2 because this is a triangle, 1/2 this 2 into this 30, ये हो गया। ठीक है, अब गौर से देखिए कहाँ से डिस्टेंस चाहिए? डी से। डी पे चाहिए ना, डी से इसके सीजी की डिस्टेंस वो 1/3 या h/3 बोल सकते हो। तो d/3 और ये लेके जा रहा है इसको नीचे की तरफ, इसलिए साइन माइनस, तो -20 व्हेन कंसीडरिंग द राइट साइड ऑफ द सेक्शन। तो ये बेंडिंग मोमेंट निकल गया। सारी वैल्यू को ड्रॉ कर लिए। जहां पर यूडीएल होता है वहां पर पैराबोला होता है, आप उसको एज ए पैराबोला बनाएंगे। जहां पर सिंपल बीम कुछ नहीं होता, देयर इज इंक्लाइन लाइन होती है, यू है, फिर यू इंक्लाइन लाइन, फिर बस ये है पैराबोला, इसको क्यूबिक बोलते हैं, क्यूबिक पैराबोला। तो ये आपका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम आपका आराम से आप ड्रॉ कर सकते हैं। ये वही चीज है जो हमने अभी तक किया है, बस यहाँ पर चेंज दो तरह से, एक तो पैटर्न ऑफ लोडिंग एंड यूनिफॉर्मली बेयरिंग लोड, वो अलग से था, वो अलग से कर दिया। तो इस तरह से आ गया शियर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्सर आपको पता है कैसे कैलकुलेट करना है, मैं बिल्कुल बता चुका हूँ आपको। सेम मेथड यू कैन अप्लाई एंड यू जस्ट फाइंड आउट। जहाँ पर शेयर फोर्स जीरो होगा, जहाँ पर शेयर फोर्स आपका जीरो होगा वहाँ बेंडिंग मोमेंट मैक्सिमम होगा, तो उसकी भी वैल्यू आपको निकालनी पड़ती है। देन अब अपन एक चीज और देख लेते हैं, इसको मैं आज खत्म करना चाह रहा हूँ। ये चीज आपने देख ली है, बस इसमें देखो एक चीज बेटा, यहाँ पर अभी तक आपने जो पढ़ा जस्ट पिछले वाले न्यूमेरिकल में, इसमें क्या अंतर है? एक तो ये कैंटिलीवर बीम है, दूसरा इसमें लोड इंक्लाइंड है। पहले लोड ऐसे था, अब इंक्लाइंड है। तो इंक्लाइंड है तो क्या करोगे? इसके दो कंपोनेंट होंगे, एक होगा 40 cos 30 और एक होगा 40 sin 30। तो अब आप देख लो यहाँ पर गौर से, ये वाला जो 40 sin 30 ये मेन रोल प्ले करेगा। चलो हम आगे आपको समझाते हैं, आगे चलते हैं। ये देखिए क्या हुआ है, मेनली वो उतना ही समझा और सब एक जैसे ही है, उतना ही हमको भी नीड टू बी अंडरस्टैंड। चलिए आइए ये देखिए क्या हुआ यहाँ। ये देखिए हमने उसको ऑफसेट में था, इसको 40 साइन थीटा कर दिया तो ये 20 हो गया, ये 40 कॉस थीटा कर दिया 34.64 हो गया। अब फिर यहाँ पर एक लोड होगा जो कि एक 20 का लगेगा और एक मोमेंट होगा जो कि 10 होगा। चलिए आगे चलते हैं। इसको सेम जो अभी देखा था, यहाँ आइए, ये आइए, यहाँ आ गए। ठीक है, सो ये भी यहाँ देखिए, ये लोड लग रहा है कितने का? 20, और यहाँ पर कितना, और दैट इज लोड कितना ऐड कर रहा है। चलो आप देखते हैं, एक तो ये ऐड कर रहा है कितने का, यहाँ ध्यान से देखिए, ऑफसेट कितने का है? दिस 20 वाले का देखो जरा, इसका 20 इंटू 0.5, 20 इंटू 5.5, ये किधर लेके जाएगा इसको? देखो जरा, इस पॉइंट पे क्लॉक वाइज, तो ये हो जाएगा +20 इंटू 5। और एक ये वाला है, ये देखो ये भी लग रहा है, इसको इधर फिक्स करो, ये तो ये क्लॉक वाइज लेके जाएगा, ये वाला एंटी क्लॉक वाइज लेके चला जाएगा। देखो जरा, ये क्लॉक वाइज, इसको फिक्स करो, इसको तब समझ में आएगा। इसको फिक्स कर दो यार, वो हिंज लगा दो, तो ये लोड जैसे यहाँ पर लगा और ये फ्री हुआ तो यूं घुमाएगा, ये हो गया क्लॉक वाइज। और अगर यहाँ पर इसको हिंज कर दिया तो यहाँ पर ये लोड फोर्स लगा तो ये इसको ऐसे घुमाएगा, दोनों अपोजिट हो गए। ये देखो ये माइनस हो गया, तो ये -14.25 इक्वल टू एंटी क्लॉकवाइज, इसलिए ये एंटी क्लॉकवाइज हो गया यहाँ। बस ये चीज़ आपको होप आप समझ गए होंगे, यही इसमें बताने की और खास चीज़ है जो आज इसमें डिस्कस करने वाली थी। तो क्यों ये एंटी क्लॉकवाइज हुआ? बिकॉज ऑफ दिस वन। तो ये वाला एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा, ये वाला क्लॉकवाइज घूमेगा, जो ज़्यादा होगा उसका साइन आएगा, उसका डायरेक्शन आएगा। ठीक है, अब आप आगे, अब देखिए पूरा मटेरियल तैयार हो गया। अब आपको एक काम और करना पड़ेगा,
क्योंकि ये कौन सी बीम है, कैंटिलीवर बीम। तो आपको यहाँ पास भी रिएक्शन सपोर्ट में निकालने, ज़्यादा घबराने की जरूरत नहीं है, ज़्यादा दिमाग भी नहीं लगाना, बहुत सिंपल है। चलिए यहाँ पास जो भी ये इधर लग रहा है, तो इस समय पर एक हॉरिजॉन्टल लोड लगेगा जिसको कोई रोल नहीं आएगा, आगे शेयर फॉर बेंडिंग मूवमेंट का कोई इफेक्ट नहीं है, वो गया, वो यहीं पर एच डी आप इतना लिख के फुर्सत हो जाएगा। अब वर्टिकल लोड कितना लग रहा है, इस यहाँ पर कितना लोड लग रहा है, तो जितना ऊपर से नीचे की ओर लग रहा है इसको कन्वर्ट कर लो, कितना के लग रहा है, ये 20 इंटू 30 प्लस 20 प्लस 20, ये वाला जितना ये ऐसे नीचे की तरफ लग रहा है उसका, उसको बैलेंस ये वाला कर रहा है। तो वर्टिकल वी डी इज दिस 80 किलो न्यूटन। देन मूवमेंट यहाँ पर मूवमेंट निकाल लो, जो भी लोड है 20, इसकी डिस्टेंस कितनी है 2 1 1 5, तो 20 इस पॉइंट्स पे ये वाले की, पहले तो एम डी पे देखो, डी पे हमको निकालना है, इस पॉइंट पे ये वाला जो कपल है कितना लोड लग रहा है, तो 20 इंटू दिस 3 और 3 और देखो इससे कितनी डिस्टेंस पे वो ऐड कर रहा है, ठीक है। कहाँ से, डी पॉइंट पे निकालना है। उसके बाद आपका दिस, ये कितने डिस्टेंस पे 20 और दिस, तो आप इसको भी सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर कपल आ जाएगा। अब देखो इसका फायदा क्या है, अब लगभग सॉल्व हो गया। अब आप शेयर फोर्स निकाल लीजिए, ये देखिए ये आपका शेयर फोर्स हो गया, और लाइकवाइज आपको सारे वैल्यू बेंडिंग मोमेंट में भी आप कैन फाइंड आउट, आप निकाल सकते। तो ये है कैंटिलीवर बीम, कैसे करना है ये सारा कुछ दिया है। अब इससे टफ तो कुछ नहीं हो सकता, बिल्कुल नहीं, इससे टफ नहीं हो सकता, और इससे टफ कोई आने वाला भी नहीं है। तो आपको प्लीज कीप प्रैक्टिसिंग इन सब चीज़ों को, ठीक है। तो इससे टफ तो नहीं आने वाला। सो आज के लिए आई थिंक इतना इनफ है। आप देख लीजिए, मैं आई विल प्रोवाइड दिस पीपीटी एंड आप प्रैक्टिस करिए।